अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7। आज हम अपना लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है छोटा सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसमें कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स एंड देन क्लॉक यूनिट। ठीक है, इसमें आपका जो अब वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। The control unit directs and controls the activity of the internal and external devices. Control unit आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनल या एक्सटर्नल उनको कंट्रोल करता है. It interprets the instructor fetched into the computer, determines what data if any are needed, where it is stored, where to store the results of the operation. ठीक है, and sends the control signals to the devices involved in the execution of the instruction. Whereas arithmetic logic unit is the part where actual computations take place. It consists of circuits which perform arithmetic operations, that is addition, subtraction, multiplication, division. जो भी आप arithmetic ऑपरेशन देते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, जैसे वो कोई एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी हो, तो वो इस लॉजिकल यूनिट के थ्रू कंप्यूटर हमारा हमें सॉल्व करके देता है. ठीक है, ओवर डेटा रिसीव फ्रॉम द मेमोरी एंड केपेबल टू कंपेयर नंबर्स. रजिस्टर्स आर अ टेम्पररी मेमोरी area inside the CPU. Registers are used for memory addressing, data manipulation and processing. Some of the registers are general purpose and some are reserved for certain functions. It is high speed memory which holds only data for immediate processing and results of this processing. If these results are not needed for the next instruction, they are sent back to the main memory, and registers are occupied by the new data used in the next production. ठीक है, अब क्लॉक यूनिट क्या होती है? व्हाट इज़ क्लॉक यूनिट? The clock unit regulates the rate at which instructions are executed. It also synchronizes all the various computer components. The faster the clock, the more instructions the CPU or processor can execute per second. The speed or clock rate is usually measured in gigahertz. ठीक है, अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेमोरी. मेमोरी क्या होती है? वैसे आप लोग मेमोरी से क्या समझ आते हैं? व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी जो ह्यूमन बींग्स की भी मेमोरी होती है. ठीक है, हमारा जैसे मेमोरी है, हमारी मेमोरी सब कुछ हमारा जो ब्रेन फंक्शंस हैं, ब्रेन के अंदर हमारी एक मेमोरी होती है जिसे हम याद रखते हैं. जो चीज़ें वो हमारी मेमोरी में सेव होती जाती हैं, चीज़ें डिफरेंट टाइप की. इसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है. ठीक है, मेमोरी का क्या फंक्शन होता है? Modern electronic computer generally possess several distinct types of memory. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computer where the data is to be processed and instructions required for processing are stored. ठीक है, जितनी प्रोसेसिंग होती है, जितना भी इसमें स्टोरेज होता है, उस हिसाब से वो अपनी प्रोसेसिंग को सेव करता जाता है कंप्यूटर मेमोरी में. The computer memory can be placed into one of the two categories. अब इसकी मेमोरी की हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं. वो क्या है? वो है आपके पास प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी. इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस and data for rapid and direct access by the computer central processing unit. Primary memory is synonymous with random access memory. ठीक है, as a computer performs its calculation, it is continuously reading and writing, that is storing and retrieving information from RAM. For instance, instructions and data are retrieved from RAM for processing by the CPU and the results are returned to RAM. Modern RAM is made of semiconductor circuitry. RAM is a volatile form of information storage. It is because the electric power is terminated. Any data that it contains is lost. There are other semiconductor memories devices accessed by the CPU that are generally considered as being distinct from primary memory, that is different from RAM. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों के डिफरेंसेस हैं. जैसे हम अभी यहाँ से पढ़ेंगे, रीड ओनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ रोम. दीज चिप्स आर नॉन वॉलेटाइल एंड कैन नॉट बी पर्ज टू स्टोर समथिंग एल्स. वन इट हैज़ बीन यूज्ड. ब्लैंक रोम चिप्स कैन बी कोडेड विद द हेल्प ऑफ अ टूल नोन एज प्रोग्रामर. ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी
को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। फ़िलहाल आप लोग इसको दोबारा से रीड करना और यहाँ से जो पॉइंट आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग ने मुझे वॉइस मैसेज भेजना है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक, तो थोड़ा सा हमारा ये वाला टॉपिक रह गया, इसको हम ख़त्म करके हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज देखते हैं क्या है, वो हम अपनी नीट कॉपीज़ में करेंगे। और इस चैप्टर को आप लोगों ने शुरू से रीड करना है, जहाँ से कुछ समझ ना आए यू मे आस्क, ठीक है। बाद में ये ना कहना कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या यहाँ से आपने नहीं समझाया, तो आप लोग मुझे इमेज लेके भेज दें, मैं आप लोग को उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, ग्रेड 7। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।